Psalms 149 verse 4 says, भजन संहिता 149 और चौथे वाक्य में लिखा हुआ है, For the Lord takes pleasure in his people. यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहते हैं, He will adorn the humble with salvation. वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान बनाते हैं। I repeat it again, he will adorn the humble with salvation. मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेंगे। Anybody who wants to experience salvation from heaven, अगर कोई भी इंसान स्वर्ग से उद्धार का अनुभव करना चाहता है, it's a must for that person to humble himself. तो बहुत जरूरी है कि उस इंसान ने अपने आप को दीन और नम्र बनाना है। But it's rather unfortunate today's church is missing this crown virtue. लेकिन दुर्भाग्यवश आज की कलीसिया में ये गुण हमको दिखाई नहीं पड़ता है। This morning that the Lord Almighty want to talk to us, इस सवेरे के वक्त परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। teach us at least 4 lessons what it means to be humble. 4 बातों को सिखाना चाहते हैं कि नम्र होना इसका क्या मतलब है। May the Lord help us in these learnings in the name of Jesus Christ. परमेश्वर हमारे सीख में हमारी मदद करे यीशु मसीह के नाम से। Let's open our Bibles to 1 Peter chapter 5 verse 5 to 7. आइए अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे, पहले पत्रस की किताब 5वां अध्याय 5वें वाक्य से 7वें वाक्य तक। I'm going to read it for us from the NKJ version. It says, Likewise, you younger people, submit yourself to your elders. Yes, all of you be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud but gives grace to the humble. Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that he may exhort you in due time, casting all your care upon him, for he cares for you. हे नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरना तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएंगे, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Our 4 lessons come from the verses that we just read. जिन वाक्यों को हमने पढ़ा, यहाँ से ही हमारे 4 सीख आते हैं। Verse 5 said something very beautiful. यहाँ पे देखिए 5वें वाक्य में कुछ सुंदर लिखा हुआ It है। says, Clothe yourself with humility. लिखा हुआ है कि दीनता से कमर बांधे रहो। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, how do you clothe yourself with humility? आप अपने आप को दीनता से कैसे आप कमर बांधते हैं? For us to understand the language of Peter here, पतरस की भाषा को अगर हमको समझना है, we need to go back to the times of Peter. तो पतरस के समयों में हमको जाना होगा। Those days, उन दिनों में anybody who would stand to serve others, जो कोई दूसरों की सेवा करने के लिए खड़ा होता था, rather the lowly servants of the household, घराने का जो सेवक जन था, they often wore an apron. वो हमेशा अपने कपड़ों पर एप्रन को डालते थे। You know, on their clothes they would wear an apron which was tied from behind. जिसको पीछे से बांधा जाता था। They would not tie it in front, but it is tied usually behind. पीछे बांधा जाता था। You can see that these days chefs using that kind of a thing. इन दिनों में हम देखते हैं शेफ लोग जो खाना बनाते हैं वो इस एप्रन को पहनते हैं। Whoever has worn that kind of apron और जिस किसी ने ये एप्रन को बांधा हुआ होता was है, seen as lowly servant in those days. उन दिनों में उनको सेवक करके जाना जाता था, माना जाता था। Now Peter is bringing that similitude here. अब पतरस वही चीज को हमको बता रहे हैं यहाँ पे। And he's saying that you need to clothe yourself. That means to say that you need to wear the apron of humility upon yourself and be ready to serve one another. और यहाँ पे पतरस यही कह रहे हैं कि दीनता से कमर बांधे रहो और एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर रहो। Does it mean that you conform and compromise with everyone? इसका क्या ये मतलब है कि आप हर एक के साथ में सहमत हो जाए और समझौता करें हर एक के साथ? No, that's not true. ऐसा नहीं है। If you conform and go with everybody's opinion, अगर आप जो है हर किसी के राय के साथ चलते हैं, everybody will like you, तो हर किसी को आप पसंद आएंगे, but you will not like yourself. लेकिन आप खुद अपने आप को पसंद नहीं करेंगे। God wants you to be yourself. परमेश्वर चाहते हैं कि आपका खुद का एक व्यक्तित्व हो। God wants your opinion to be open and clear, परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी राय हो और राय जो है खुली हो और स्पष्ट हो, but not putting down others' opinion. लेकिन दूसरों की राय को दबाकर नहीं। Anytime that we
express our opinion, जब कभी भी हम अपने राय को बताते हैं we always do that at the cost of putting down somebody else's opinion. तो ऐसा होता है आमतौर से कि दूसरों की राय को दबाते हैं और हम अपनी राय को बढ़ावा देते When हैं। you humble yourself, जब आप अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, when you clothe yourself with humility, जब आप दीनता से अपने कमर को कस के बांध लेते हैं, you look at others' opinion as something greater, तो आप दूसरों की राय को भी देखते हैं something worth pondering और upon, दूसरों के राय पर मनन करने के लिए आप तैयार रहते हैं। something worth considering. आप दूसरों की राय को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। My brothers, that is humility. मेरे भाइयों, ये नम्रता है। This is a practical tip that the Lord wants to teach us this morning. ये प्रैक्टिकल बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं सवेरे के वक्त। Second thing that we learn in this place, दूसरी बात जो हम यहाँ पे सीखते हैं, God opposes to the proud but gives grace to the humble. क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करते हैं परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। Listen to this. ध्यान से सुन लीजिएगा। Peter is quoting an Old Testament statement here. यहाँ पे पुराने नियम की बात को पतरस बता रहे हैं। He's quoting the scripture of the Old Testament. पुराने नियम शास्त्रों के वाक्य को यहाँ पे पुनः पतरस दोहरा रहे He हैं। says that God opposes the proud. कह रहे हैं यहाँ पे कि क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करते हैं Whoever is proud, they have God standing against them. और जो भी अभिमानी है, देखिए उनके विरुद्ध परमेश्वर खड़े हैं। But whosoever is humbling themselves, the Lord fills that kind of a person with lot of grace. परंतु दीनों पर अनुग्रह वो करते हैं। दीनों के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह को भरते हैं। It doesn't mean that humility is seeing yourself less. नम्रता का ये मतलब नहीं है कि आप खुद को जो है कम समझते हैं। It is to prioritize others' opinion. ये है कि आप दूसरों के राय को आप सुन लीजिए, देख लीजिए। Making sure that you're not proud about what you think. ये निश्चय कर लीजिएगा कि जो आप सोचते हैं, जैसे आप है, उसको लेकर घमंड न करें। But humbling yourself and waiting for the grace of God to cover us. और लेकिन नम्र दीन होकर रुके हुए रहना, बने हुए रहना कि परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर हमको ढाके रहे। Number 3 thing that we want to learn here. तीसरी बात, Further down it says, humble yourself under the mighty hand of God that He may exalt you at the proper time. इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, if you check the scriptures, अगर आप शास्त्रों में देखते हैं, the hand of God, the scriptures talk about the hand of God, especially in 2 cases. वचन में परमेश्वर के भुजा के बारे में, उनके हाथ के बारे में लिखा हुआ है। Rather, it symbolizes 2 things. ये परमेश्वर का बलवंत हाथ 2 बातों को दर्शाता है। It talks about the disciplining hand of God, and it also talks about the delivering hand of God. परमेश्वर का अनुशासन में लाने वाला हाथ और परमेश्वर का छुटकारा देने वाला हाथ। That I may say this morning, और इस सवेरे के वक्त में ये कहना चाहता हूँ, we need both the disciplining hand at the same time delivering hand. हम परमेश्वर के अनुशासन को चाहते हैं और परमेश्वर के छुटकारा वाला हाथ भी चाहते हैं। Wherever there is no disciplining hand, there is no delivering hand. जहाँ पे परमेश्वर की ताड़ना नहीं होती है, वहाँ पे परमेश्वर का छुटकारा भी नहीं होता। When God is disciplining you, जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करते हैं, you need to be proud because He doesn't discipline any and anybody. He does discipline His own children. तो हमको खुश हो जाना है क्योंकि वो हर एक को जो है अनुशासन में नहीं लाते हैं, हर एक को ताड़ना नहीं देते हैं, वो केवल अपने बच्चों को ताड़ना देते He हैं। doesn't want to do away with you. He wants to gather you back to Himself. That is why He is disciplining you. वो आपको अपने नजदीक लाना चाहते हैं और इसीलिए आपको ताड़ना दे रहे हैं। And that discipline you will only take when you learn to humble yourself. और वो उनकी ताड़ना को आप तब ले पाओगे जब आप अपने आप को दीन और नम्र बनाओगे। To put it in a simple way, that those who allow the disciplines of God to come to them are the ones who actually get deliverance from the Lord. सामान्य शब्दों में अगर कहने जाऊं तो जो लोग होने देते हैं कि परमेश्वर का ताड़ना उनके जीवन में हो, वो परमेश्वर के छुटकारा का भी अनुभव करते हैं। I repeat again, those who have the humility in themselves, it is them that the Lord deliver from the clutches of the enemy. और देखिए, जिनमें वो नम्रता है वही लोग होने देते हैं कि परमेश्वर का छुटकारा का हाथ कार्यशील रहे और शत्रु के चंगुल से वो छूट जाते हैं। So fourthly, this morning I want to see, सो चौथी बात हम चाहते हैं कि हम देख ले, casting all your anxiety on Him because He
cares for you. और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। Here Peter addresses a core issue of every human being. यहाँ पे पतरस जो है हर एक मनुष्य के मूल बात को लेकर बोल रहे हैं। We often say that, oh, if I don't care for myself, who will care for me? हम हमेशा ये कहते हैं, अगर मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? The truth of the matter is, if you actually trust in God, सच्ची बात यह है कि अगर हकीकत में आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, you need to learn to cast your cares upon the feet, at the feet of God. तो आपने सीख लेना है कि आपने अपनी सारी चिंता को उन पर ही डाल देना है। As long as we are worrying, जब तक कि हम चिंता में रहते हैं, as long as we are carrying that anxiety, और जब तक कि हमें वो व्याकुलता है, we bind the hands of God. मानो ऐसा हो जाता है कि हम परमेश्वर के हाथ को ही बांध देते We हैं। don't give him the leg room to act for us. हम जो है अपने जीवनों में परमेश्वर को कार्य करने का फिर मौका ही नहीं देते But हैं। instead of when we cast our cares at his feet, लेकिन इसके बजाय जब हम अपनी चिंताओं को उन पर डाल देते हैं, when we ask God to take care of us जब हम परमेश्वर से कहते हैं कि आप मेरा ध्यान रखिएगा and begin to care for somebody और else, किसी और का ख्याल रखेगा और ध्यान रखेगा, begin to serve somebody else, किसी और की सेवा करने लग जाइएगा, begin to humble ourselves and stand for somebody else. आप अपने आप को नम्र दीन कर कर जो है किसी की सेवा करने में लग जाइएगा। And that is when that the Lord will act for you and deliver you from every clutch of the enemy. तब जाकर परमेश्वर आपके ओर से कार्यशील होंगे और शत्रु के हर एक पकड़ से आपको आजाद करेंगे। My brothers and my sisters, मेरे भाइयों मेरी बहनों, you forgetting your own problems is a must, and you embracing others' problems is a must for you to experience good God hand upon your life. और देखिए जरूरी है कि आप अपने चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दें, और ज़रूरी है कि आप दूसरों की सेवा करें, और जब आप दूसरों की सेवा करेंगे तब जाकर जो है आप बढ़ पाएंगे। I pray that the Lord Almighty may teach valuable lessons from this place in the name of Jesus मेरी Christ. प्रार्थना ये है कि परमेश्वर अनमोल सीखों को हमको सिखाए इस जगह से। With these thoughts, I want us to go into the day, इन विचारों के साथ हम चाहते हैं कि दिन में हम जाएं, humbling yourself, अपने आप को नम्र और दीन बनाते not हुए, being proud, but humbling yourself, घमंडी न होते हुए, अभिमानी न होते हुए, अपने आप को नम्र बनाते हुए, not being anxious, but humbling yourself, चिंता न करते हुए लेकिन अपने आप को नम्र बनाते हुए, not thinking for yourself, but humbling yourself, अपने बारे में सोचते न रहे लेकिन अपने आप को नम्र करते हुए, not just humbling yourself, but also thinking about somebody else. आप जो है केवल अपने आप को नम्र न करें लेकिन दूसरों के बारे में भी सोचे। As you do that, जैसे आप ऐसा करते हैं, the Lord shall surely help you to come up in the name of Jesus परमेश्वर Christ. आपकी मदद करेंगे कि आप बड़े यीशु मसीह के नाम से। We thank the Lord for this wonderful thing. परमेश्वर को धन्यवाद देते May हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित रखे, You have a great day. आपका दिन बड़ा अच्छा जाए, Stay blessed. आशीषित रहिएगा।